Hello students, we are seeing class 9th science chapter number 2, that is matter around us pure? Okay, in the previous video we have discussed about elements, compounds, that is pure substances, and after that we have started discussing mixture. Okay, we have studied definition of mixture, examples, for example lemon sharbat. Then we have studied types of mixture. There are two types of mixture, homogeneous and heterogeneous. Okay, after that homogeneous mixture is called as solution, heterogeneous mixture is called as colloid and suspension, that we have seen in our previous video. Okay, then we have discussed solution in detail in the previous video. We have discussed definition, then different types of solutions, and last May we have discussed the concentration of solution. Okay, we have discussed properties of solution and concentration of solution. Now in today's video we are going to concentrate on suspension and colloids. Okay, suspension and colloids, these are heterogeneous mixture. Okay, let us see what is the meaning of suspension. As you can see on the slide, there is the definition of suspension. What is suspension? Suspension is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture मतलब ऐसा मिक्सचर जो thoroughly यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन. Suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent but remain suspended in it. जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड जो है उसके कुछ, अगर आपने उसकी जो पाउडर है, वुडन पाउडर अगर आपने कंसिडर की, वो वाटर के अंदर अगर आपने डाली तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी. सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है ना. तो ये क्या होगी, ये सिर्फ फ्लोट करेंगी आपके वाटर के solvent में. So that will make a suspension. Okay, what is suspension? A heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent but remain suspended in it. Okay, see the figure, there is a suspension of chalk powder and water shown in the figure. जो सेकेंड बीकर जो है उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक वाइट कलर का सोल्यूशन दिख रहा है ना, दैट सोल्यूशन इज व्हाट, इट इज ए सस्पेंशन. ओके, अभी इधर के साइड में देखो, आपको थोड़े पार्टिकल्स जो है मतलब प्योर वाटर दिखाया गया है ना. इसमें जैसे देखो, वाटर अगर प्योर फॉर्म में आप कंसिडर करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट है, आपको उसके बैकग्राउंड के पीछे की चीज़ जो है वो क्या कर रही है, इसमें से साफ दिखाई दे रही है. बट जब ये बनता है सस्पेंशन, इसमें आपने चॉक पाउडर ऐड किया, उसको थरोली क्या किया, आपने स्टीर किया, मिक्स किया, तो ये सॉल्यूशन कैसे बना, इट बिकम्स ए ट्रांसपेरेंट, सॉरी इट बिकम्स ए व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ओपेक सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ओपेक जो होता है वो जनरली सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, सारे के सारे ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में आते हैं. सस्पेंशन जो है वो होते हैं ओपेक. क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिक्स है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स है, और ये पार्टिकल्स हमें इजीली दिखते हैं क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं, और इसके वजह से उसके पीछे का जो सब्सटेंस है आपको दिखाई नहीं देता है. ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन. सी द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन. A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent but remain suspended in it. Next point, particles of solute are visible to naked eyes. solute के जो particles होते हैं suspension में, they are visible to our naked eyes. उनको देखने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता है, by using your eyes only you can see the particles of suspension. Next point is example, a mixture of chalk powder and water is a suspension. जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है आपको, एक मिक्सचर किसका, चॉक पाउडर का वाटर के अंदर, दैट फॉर्म्स ए सस्पेंशन. लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. The particles of suspension are visible to naked eyes. We can see these particles by our naked eyes. Third is particles of suspension scatter a beam of light.
पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, देखो ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एक सस्पेंशन है जिसमें वाटर में सपोज एक सॉइल का मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर में डिजोल्व करके, या चॉक पाउडर भी हम ले सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका सस्पेंशन है। सस्पेंशन में से एक बीम ऑफ लाइट उन्होंने क्या की, पास की। ओके, और बीम ऑफ लाइट पास करने के बाद में आप देखो वो बीकर के अंदर आपको वो जो बीम है वो क्लियरली विजिबल हो रही है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी शो करता है सस्पेंशन। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, टिंडल इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? The particles of suspension scatter a beam of light. Particle of suspension scatter a beam of light. उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सस्पेंशन बनाया है आपने, उसको कुछ समय के लिए वैसे के वैसे रखो बाजू में, एक आध घंटे के लिए। यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन कैसे होता है, इट इज़ अनस्टेबल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ओके, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे वही अपना जो पुराना चॉक पाउडर का सॉल्यूशन हमने लिया था, उसी को आपने कुछ समय के लिए अगर सेटल डाउन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो वाटर है वो क्लियर दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे पहले था। उसके बाद में जो चॉक के पार्टिकल्स है वो देखो धीरे धीरे करके सारे के सारे सेटल डाउन हो गए हैं बॉटम में, है ना। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इफ द suspension is left undisturbed, then after some time all the particles will get situated, stable at the bottom of the what कंटेनर। ओके, ये होता है जब आप कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हो ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूजिंग इट। वाई? क्योंकि उसमें सस्पेंडेड जो मेडिसिन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते कुछ समय के बाद में। तो इसके वजह से इफ़ यू वांट टू गेट इट्स कंप्लीट इफेक्ट यू हैव टू शेक इट वेल, है ना, ताकि वो फिर से कैसे मिक्सचर बने, थ्रू आउट मिक्सचर बने, जो आप मतलब जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। सो दे आर ऑल व्हाट, a kind of suspensions. See, next property है particles of solute can be easily separated by using filtration method. इसके जो particles होते हैं solute के, इनकी साइज़ बड़ी होती है और साइज़ बड़ी होने की वजह से ये particles आप filtration के मेथड से सेपरेट कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में फ़र्क अगर आपको ध्यान में रखना है तो ये पेज के ऊपर से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। देखो, सस्पेंशन इज़ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन होमोजेनियस था। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज, सॉल्यूशन के इनविजिबल थे। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. वहाँ पे क्या था, do not settle down था। Okay, and fifth, particles of solute can be easily separated by using filtration method in case of suspension. In case of solution, it cannot be separated by using filtration method. Okay, तो ये टॉपिक के ऊपर से आप differentiate between solution and suspension भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। Okay, okay. Let us move to the next topic, that is colloid. Colloid क्या है? ये भी एक तरह का heterogeneous mixture है। Colloid is also a heterogeneous mixture in which particles of smaller size are embedded in solvent is called as a colloid. A heterogeneous mixture in which particles of smaller size are embedded in the solvent is called colloid. अभी colloid और सस्पेंशन दोनों के दोनों हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है। दोनों में फ़र्क क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल साइज़ में बड़े होते हैं और कोलाइड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, हियर पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल। जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, इन द सेम मैनर सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, बट
दे अपीयर एंड बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर लाइक होमोजीनियस मिक्सचर। देखते बराबर हमें ऐसे लगेगा कि अरे ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में दिया है आपको मिल्क को देख के हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि उसमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर प्रेजेंट है, जैसे या वो किसी दो चीज़ों का मिक्सचर होगा। वो यूनिफॉर्म लगता है लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोल्यूशन होता तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ए होमोजीनियस solution. Okay, they scatter light which proves that they are not homogeneous। और दूसरी important चीज़, जो solutions होते हैं वो light का scattering नहीं करते हैं। जो heterogeneous होते हैं वही light को क्या करते हैं, scatter करते हैं। This point is useful to discuss whether it is homogeneous or heterogeneous. Okay, so heterogeneous mixture is in which particles of smaller size are embedded in the solvent is called a colloid। सी यहाँ पे colloid के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फोम आप सबको पता है। अभी फोम में क्या होता है, फोम में लिक्विड है और लिक्विड के बीच में एयर के पॉकेट्स होते हैं। ओके, तो ये एयर इन लिक्विड टाइप का फोम है, क्या है, colloid है। लिक्विड मिल्क में क्या होता है, वाटर में कई तरह के फैट प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। ओके, तो सॉलिड इनटू लिक्विड टाइप का आपका कोलाइड आएगा। मिल्क, स्मोक में एयर मतलब गैसेस और उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है स्मोक। डिटर्जेंट्स, लिक्विड के अंदर सॉलिड्स एम्बेड किए हुए होते हैं। जेल्स, देन ब्लड, देन पेंट एंड कॉस्मेटिक्स, these all are examples of colloid. Okay, these all are what examples of colloid. Let us see properties of colloid now. Colloid, it is a heterogeneous mixture. Colloid is a heterogeneous mixture. The particles of colloid are so small that they are invisible to naked eyes। अभी ये जो मिल्क दिखाया है आपको पिक्चर में, ये मिल्क कैसा है, ये कोलाइड है लेकिन इसके पार्टिकल्स आप देख नहीं सकते हो। जैसे अगर मैंने थोड़ी सैंड अगर वाटर में मिक्स की तो सैंड के पार्टिकल्स आर विजिबल। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड बट दे आर स्मॉल, सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू नेकेड आइज, बट दे आर बिग इनफ सो दैट लाइट कैन गेट स्कैटर्ड फ्रॉम इट। इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इतने बड़े तो डेफिनेटली होते हैं कि लाइट को क्या कर सके, स्कैटर कर सके। तो दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशंस। व्हाट इज इट? पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये क्या करता है, कोलाइड लाइट को स्कैटर करता है। कोलाइड इससे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। जो लाइट का स्कैटरिंग जिसमें होता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। अभी ये कोलाइड और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंशिएशन का पॉइंट है कि सस्पेंशन के पार्टिकल कुछ समय के बाद में सेटल डाउन होते हैं, है ना। कोलाइड के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। आप कितना भी समय उसको अनडिस्टर्ब रखो, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल जो है वो लाइट वेटेड होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स दे आर हेवियर इन साइज। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर लाइट वेटेड एंड बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट है, अभी ये देखो यहाँ पे कोलाइड की प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे फिनिश होती हैं। देर आर इम्पॉर्टेंट, वन पॉइंट इज रिमेनिंग। व्हाट इज इट? अगर आपको मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ध्यान से सुनो कि अगर मुझे सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगी? आई विल यूज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर मुझे कोलाइड के पार्टिकल्स सेपरेट करने हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटे होते हैं साइज़ में, और ये लाइट वेटेड पार्टिकल्स आपको मतलब अगर मैं लेफ्ट करती हूँ थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब तो वो सेटल डाउन नहीं होते। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए आपको दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। यू यूज़ द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट व्हाट, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे हमें ब्लड का पता है ना, ब्लड में से उसके पार्ट सेपरेट करने हैं या मिल्क में से उसके फैट वगैरह सेपरेट करना है, तो हम
सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे आपको तीनों कंडीशंस मतलब सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों में लाइट का क्या होता है ये दिखाया गया है। जैसे पहला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो आपको लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइड में आपको पार्टिकल का पाथ दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट, कोलाइड शोज टिंडल इफेक्ट। और सस्पेंशन में भी पाथ विजिबल है, मीन्स सस्पेंशन आल्सो शोज टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट मतलब बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। जैसे डेंस फॉरेस्ट अगर कहीं हो तो आपको डायग्राम में जैसे दिखाया है वैसे क्या होता है, उसका पाथ आपको क्लियरली विजिबल होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टिंडल इफेक्ट। ओके, सो हियर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, सेपरेशन मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो के ऊपर से नोट्स बनाओ और इसका स्टडी करो। ओके, बाय।